Hello everyone, online classes, class 8th, subject science, chapter 12, part 2, increasing and reducing friction, घर्षण बढ़ना तथा घटना. As you have seen in the previous section, friction is describable in some situation. Have you ever thought why the sole of your shoes in grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the groove. पिछले अनुभाग में आपने देखा होगा कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है. क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? खांचे जूतों के फर्श को पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं. इसी प्रकार कार, ट्रक और बुलडोजरों में टायर भी खांचेदार होते हैं, इससे सड़क पर उनकी अच्छी पकड़ बन सके. We deliberately increase friction by using brake pad of the brake system of bicycle and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pad do not touch the wheel, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. The wheel stop moving. You might have seen that kabaddi players rubber their hand with soil for a better grip of their opponent. Gymnasts apply some coarse substance on their hands to increase friction for better grip. स्वचालित वाहनों एवं साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों को ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण की वृद्धि करते हैं. जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए का स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो पैड घर्षण के कारण रिम पर गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है. यदि आपने देखा होगा कबड्डी खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वह अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके. व्यायामी जिम्नास्ट अपने हाथों में कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण की वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके. In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. यदि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है तो हम उसे कम करना चाहेंगे. Why do you sprinkle fine powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. A bicycle and a motor mechanic use grease between the moving part of the machine. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. When oil, grease or graphite is applied between the moving part of machines, a thin layer of formed. There are moving surfaces do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to the great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduce friction are called lubricants. In some machine it might not be advisable to use oil as lubricant, and air cushions between the moving part is used to reduce friction. अब आप देखते हैं कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं. आप यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तथा दरवाजे सहज से घूमने लगते हैं. साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों को बीच ग्रीस लगाते हैं. उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षिणावृत्त करके घर्षण को कम करते हैं. जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को इस मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो उनकी एक पतली परत बन जाती है. यह गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे से रगड़ नहीं पाते. इस प्रकार अनियमितताओं को बंधन का अंतःपासन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है. गति सहज बन जाती है. घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं. कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है. यहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है. Will reduce friction, पहिए घर्षण कम कर देते हैं. You must have seen attached
and other pieces of luggage fitted with roller. Even a child can pull such pieces of luggage. Why is it so? Let's find out. आपने अटैचियों अथवा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम पता करते हैं। When one body roll over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. That is the reason it is convenient to full luggage fitted with roller. Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? जब एक वस्तु किसी वस्तु से पृष्ठ पर लुढ़कती है तो गति करके प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या आप समझ सकते हैं कि पहिए का आविष्कार को मानव जाति का महत्वपूर्ण खोजों में क्यों गिना गया है? Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced is most machine by rolling. Why the use of ball bearing? Common example are the use of ball bearing between hubs and the exercise of sailing, fans and bicycles. क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बल बेयरिंग का उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों में साइकिल की धुरी अथवा नवी हब के बीच बल बेयरिंग का उपयोग किया समान उदाहरण है। फ्लूइड फ्रिक्शन, तरल घर्षण। यू नाउ दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन yet it exerts frictional force on object moving toward it. Slurry water and other liquids exert force in friction when object move toward them. In science, the common name of gases and liquids is fluid, so we can say that fluids exert force of friction on objects in motion toward them. आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की और विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगती है। इस प्रकार जल एवं अन्य द्रव्य अन्य इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं को घर्षण बल लगते हैं। विज्ञान में गैसों अथवा द्रव्यों को एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। द फ्रिक्शनल force on an object in a fluid depend on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depend on the shape of the object and the nature of the fluid. किसी तरल पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु के आकृति तथा तरल की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। It is obvious that when object move toward fluid they have to overcome friction acting on them. In this process they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction, so objects are given special shape. Where do you think scientists get hint for this special shape? From nature, of course. Birds and fishes have to move about in fluids all the time. Their bodies must have evolved to shape which will make them lose less energy in overcoming friction. You ready about their shapes in class 6. Looking carefully at the shape of an aeroplane, do you find any similarity in its shape and that of a bird? In effect, all vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरह की गति करती हैं तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार कर पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियों दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिक को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में ये उन्हें संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करती हैं। उनके शरीर का विकास इसी प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उसकी ऊर्जा का क्षय
तथा संभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया होगा। वायुयान की आकृति की सावधानी पूर्वक देखें। क्या आप इनकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। थैंक यू।